Hi Amit, welcome to our YouTube channel Uchai. And today here we are doing one of the session for the students who are actually preparing for JEE exam in upcoming 2026. I do have a lot of questions to you. Before initiating this one, would like to give an intro. So this is Trati Sahu. I am here going to be your host for this session, and we do have guest. He is from IIT Kanpur, and let's start with you, Amit. I would like to just know a bit about yourself. What's your name? आप किस IIT से हैं? क्या branch है आपकी? Everything. Hello, I'm Amit Kumar, a third year UG student at IIT Kanpur. Uh, right now, I am pursuing BTech degree in biological science and bioengineering. And I gave my J exam in 2023. I come from Kanpur, Uttar Pradesh. All right, Amit. So, a lot of students are preparing. I haven't prepared for JEE or NEET or anything. So, I guess मुझे लगता है कि जब मैं आपसे सवाल पूछूंगी तो वो बहुत ज्यादा रॉन्ग होंगे एंड आप जो कि ऑलरेडी आपने बताया कि थर्ड ईयर स्टूडेंट है तो वुड बी एबल टू आंसर Hmm. रियली वेल. आई गॉट सम ऑफ द क्वेश्चंस. तो जैसे हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स रीच आउट करते हैं इंस्टाग्राम पे, कोरा पे, रेडिट पे, Hmm. या जो हमारे मेंटरशिप में है, उन उन सबके हमारे पास सवाल हैं. बट उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल दैट हियर ऑन ऊंचाई प्लेटफॉर्म इट्स अ वन टू वन मेंटरशिप प्लेटफॉर्म फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड नीट. सो हर एक स्टूडेंट के लिए हम एक पर्टिकुलर मेंटर असाइन करते हैं एंड देन दे गेट गाइडेड बाय Hmm. देम. So I guess I really like the concept, to be very honest, apart from this session, कि एक बच्चा जिसको प्रिपरेशन करनी है उसको वही गाइड कर रहा है जो वो टेस्ट क्रैक कर चुका है. So I got some of the Hmm. questions from it. One of the student, in fact, from Instagram asked about it, and we will be listing it. So I have a question for you. Like, let's say that जब IIT आप preparation कर रहे थे before all this happened to you. So you were topper student, average student. क्या आपका आपका क्या academically background रहा है इससे related? Before becoming J aspirant, I was topper, but Okay. after becoming aspirant, I Mhm. became average aspirant. Like I've Okay. been a good student till class 10th, but after 10th, 11th, in 11th and 12th, I would Okay. say I was average. Okay. You were average. Okay. So how much you scored in your class 10th? Sorry. How much you scored in your class 10th? Oh. In class 10th, my percentage was 95.2. Okay, that So was really that was good. good. Huh. And in 12th? In 12th, I scored 91.8. So still good. How can you say yourself that you are average student? No, I'm not judging myself by my marks. If I say I scored 95.2 in class 10th and I'm Mm-hmm. saying I was topper, so it doesn't correlate. But Okay. I'm saying I was topper because in from 1 to 10th, I have been topper of my class. But in class Okay. 11th and 12th, I struggled a lot. Okay. I can't explain how was my experience, but Okay. I struggled a lot. So like when you were in your 12th, so you were preparing for JEE and NEET. You cracked the JEE and NEET in first attempt. What attempt was yours when you got your college? It was the second attempt. In the first attempt, I cleared the cutoff, but I was not able to get good college. So I took a drop and again prepared for JEE, and then I secured IT campus. Okay, that's great. I wanted to ask that कि सबका अपना एक ड्रीम होता है कि मुझे ये करना है. So Hmm. जेई जो आप अभी आईआईटी कानपुर में आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, दिस वाज समथिंग दैट यू प्लान्ड सिंस योर चाइल्डहुड, और ये आपका प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ या फिर ये एक एक्सीडेंटल ड्रीम था? अ, ये मेरा ही थॉट था, मतलब ये प्लान ही था, मतलब ओके, फोर्सफुली नहीं था ऐसा कुछ। दैट इज वेरी गुड. आई गेस दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आप उसको सेकंड अटेम्प्ट में ही क्रैक कर पाए, और काफी हम्म, अच्छा आप अभी कर रहे हैं. आई हैव वन ऑफ हम्म, द थिंग इज दैट कि हमारे पास एक स्टूडेंट आया था. तो जनरली जैसे आप हमारे साथ ऊंचाई में मेंटर हैं, राइट? तो आप भी हम्म, बहुत सारे हम्म, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं. जनरली आपको क्वेरीज जिस हिसाब से वो अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हम्म, हैं.
तो एज अ टीचर हम्म, आपको बहुत सारी मिस्टेक्स उनके प्रोफाइल में दिखती होंगी कि मे बी अगर ये बच्चा बड़ा अच्छा है पढ़ने में, बट इफ दे फिक्स दिस थिंग तो शायद चीजें आसान हम्म, हो जाए. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट हम्म, वाज यू नो मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग फेज लेट्स से इन योर जी प्रिपरेशन जब आप तैयारी कर रहे हम्म. तो जेई की जर्नी में क्या होता है, जो मेरे लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग था, क्वेश्चन करना बनना. मीन्स हो? ओके. स्कोर कम आता था. मतलब स्कोर कम आना मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज आई नो आई विल इम्प्रूव. बट प्रॉब्लम तब होती थी जब जिस चैप्टर को मैंने पढ़ रखा है उसके भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं. मतलब मुझे हम्म. लगता है ये चैप्टर मेरा अच्छा है, मैंने अच्छे से पढ़ा, मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं. तो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग वही होता है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, सब बच्चे के लिए भी वही होता है. मेरे साथ जो बच्चे कनेक्टेड हैं वो मुझसे यही कहते हैं कि सर मैंने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है, बट मैं जब हम्म. क्वेश्चन करने जाता हूँ मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते. तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है किसी के लिए भी. Okay, I totally got your point. I recently had my exam, so uh, my academic background is a bit different. It's theoretical and all. And even though I हम्म, have, learned everything, I was preparing for it. हम्म, I teach हम्म, students the day before when I have to give exam, and just an hour I felt that कि शायद मैंने कुछ किया ही नहीं है, and there is lot of things that हम्म, I'm still missing. हम्म, ओके. आई हैव वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क इज दैट कई बार ऐसे होता है कि आप जब किसी चीज के प्रोसेस में होते हैं आपको लगता है शायद आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट देयर इज समथिंग हम्म. दैट still you make mistake about it. So what was your one belief onto which you think that after preparation आपको लगा कि यार नहीं, मैंने इस मामले में और इस पर्टिकुलर चीज को लेके अपना assumption बना के रखा था, बट वो चीज हम्म. वैसी नहीं थी? ड्यूरिंग माई जेई जर्नी आई हैड अ थॉट लाइक कि यदि मैं ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ स्टडी यदि मैं बढ़ा दूंगा, ज़्यादा घंटे पढ़ूंगा, तो मेरे जो मार्क्स हैं या फिर मेरी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, मेरे अच्छे मार्क्स आने लग जाएंगे. मुझे ऐसा लगता था, बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि नंबर ऑफ आवर्स डजंट गारंटी इम्प्रूवमेंट. ट्रू. आप वेरी कैसे ट्रू. पढ़ते हो, आप जब पढ़ रहे हो उस टाइम पे आप कितना ग्रैप्स कर पा रहे हो, वो उस हम्म. पे मैटर करता है कि आप इम्प्रूवमेंट होगा नहीं होगा. बट नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने से गारंटी नहीं है कि आप इम्प्रूव हो ही जाएगा. वेरी ट्रू. सो ऑब्वियसली लाइक हो सकता है कि कोई 7-8 घंटे जिस चीज के लिए बैठा हुआ हो, कोई वो हम्म, वही सेम हम्म, सिलेबस कुड बी कवर्ड इनटू 1 or 2 hours itself. हम्म. अच्छा, आई हैव अ वन थिंग दैट आपको लगता है कि गाइडेंस इज एवरीथिंग, एंड विदाउट गाइडेंस नो वन कैन रीच टू द डेस्टिनेशन दे आर प्लानिंग फॉर? देयर कैन बी सम एक्सेप्शंस, आई कांट से, बट गाइडेंस सबको चाहिए. यदि मैं अपने बारे में बताऊं तो uh, मेरा जो 11th और 12th था वो लॉकडाउन के टाइम पे था. तो आई हैड ओके. नो गाइडेंस एंड आई न्यू नन who are uh, who are in IIT or all. So I had no guidance at all, and because of that, I made a lot of mistake. I can't explain. Means I don't want to remember those days. हम्म. Those were very hurting. But मैंने बहुत गलतियां की. यदि स्टार्टिंग के 3 या 4 मंथ में यदि मुझे कोई गाइडेंस करने वाला होता, आई श्योरली से आई कुड हैव डन बेटर. दैट इज एक्चुअली वेरी गुड रियलाइजेशन दैट एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप जब कम उम्र में ये सब चीजें स्टार्ट करते हैं तो तब हम्म, हमें लगता है कि दैट विद इंटरनेट हमारे पास अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, हम डेडिकेशन हम्म. के साथ करेंगे, डिसिप्लिन के साथ करेंगे, हो जाएगा. बट वो गाइडेंस वाली एक्चुअली. इम्पोर्टेंट कभी कभी हमें लेटेस्ट स्टेज में थोड़ा ज्यादा हिट करती है कि मे बी अगर किसी ने मेरे को बता दिया हाँ. होता. हम्म. हम्म. तो मेरे साथ इसके क्या साथ. सीन था, मैंने सोचा था कि मैं सेल्फ स्टडी से ही आईआईटी निकाल लूंगा, और मैंने 11th और 12th में कोई कोचिंग नहीं ली थी. ठीक है. सो मतलब इसे आप घमंड कह सकते हैं, कुछ भी कह लो आप, बट था मतलब कोई ये बात बोलने वाला होता कि नहीं ऐसे नहीं निकलती जेई, कोई बताने वाला होता, कोई गाइड करने वाला होता, तो sometimes शायद मैं अच्छा कर सकता sometimes था. I got your point. Sometimes you need कि वो एटलीस्ट शायद. एटलीस्ट ड्रॉप लेने की जरूरत तो नहीं पड़ती. I got your point. ये कभी कभी आपको चाहिए होता है कि कोई आईना दिखाने वाला हो जो बता सके, बिकॉज हम्म. आप एक रास्ते पे चल रहे हैं दैट इज नॉट टेकिंग यू टू एनी डायरेक्शन, इट्स जस्ट पॉइंटलेस टू वर्क ऑन टू दैट वन. ओके. हम्म. अब मैं उसकी लेट्स. गलती भी एक बताता हूँ कि हम्म. 11th क्लास में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ी थी, ओके. और मुझे लग रहा था मैं एनसीईआरटी पढ़ के आईआईटी क्रैक कर सकता ओके. हूँ. तो एनसीईआरटी से चूंकि आपने एक सवाल पूछा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग इससे आया कि जहां तक मैंने अपने एंड पे जेई एंड नीट के लिए रिसर्च किया है, मैं यूपीएससी वाले बैकग्राउंड से आती हूँ.
एंड हाँ हाँ चूंकि उस बैकग्राउंड में एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड हाँ। इंक्लूडिंग द अदर बुक्स, बट दिस इज हम्म। नॉट वेरी सो ट्रू फॉर जेई एंड नीट प्रिपरेशन। अगर कोई कर रहा है तो उनके लिए टोटली डिफरेंट स्टोरी है। अ, जैसे यूपीएससी में भी बोला जाता है ना कि एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है बट सफिशिएंट नहीं है। एग्जैक्टली। मीन्स आप एनसीईआरटी पढ़ के यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। ट्रू। यूपीएससी के लिए भी यही चीज बोली जाती है। एंड सेम गोज फॉर जेई और नीट कि आप हम्म। एनसीईआरटी पढ़ के जेई और नीट मतलब कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं, थोड़े बहुत स्कोर कर सकते हैं, बट एक डिसेंट मार्क्स नहीं ला सकते आप सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे। गॉट योर पॉइंट। और एक और रीजन है कि एनसीईआरटी को समझना खुद से इज वेरी डिफिकल्ट। मीन्स यू नीड समवन टू एक्सप्लेन दोस टॉपिक। आप इससे खुद से एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते स्टार्टिंग फेज में, बाद में पढ़ सकते हैं, बट अब स्टार्ट कर रहे हो, आप 11th में गए हो और आप सीधे एनसीईआरटी यदि शुरू कर दोगे, आई टेल यू कि नहीं हो पाएगा वो। एक टाइम के बाद आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आप पढ़ना बंद कर दोगे। मैं आपको बताती हूँ सेम चीज जो आपने बोली कि एनसीईआरटी को शायद आप खुद से उस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, आपको कोई ना कोई हम्म। इंटरप्रेटर चाहिए उस चीज के लिए। हाँ। एनसीईआरटी को लेकर के एक चीज बोली जाती है, दिस इज वेरी फेमस अमंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स, स्पेशली हमारा क्योंकि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है। तो हमारे प्रोफेसर कहा करते थे हमसे कि बेटा नो मैटर व्हाट आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आप खुद से भी पढ़ेंगे तो ईच टाइम यू विल गो थ्रू द एनसीईआरटी, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा कि आपको लगेगा कि शायद ये मैंने पहले पढ़ा ही नहीं था। So there are a lot of हाँ। interpretations of that one, and still there is lot to cover from that same syllabus because NCERT, be it for your JEE, be it your for NEET, मैं नहीं कहती हूँ कि complete syllabus आता है, बट मेनली हमारे जो इंडिया में हम्म। मेजरली एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, अब बहुत ज्यादा सिलेबस जो है वो हम्म। मेनली फोकस्ड है टुवर्ड्स द एनसीईआरटी। आई गेस दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट अब बहुत सारे हम्म। स्टेट बोर्ड्स में भी एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। So even UP हाँ। board, FP board, हम्म। and all these boards are introducing this one. ठीक है। If I have a question like कि अगर आपको अपना entire जेई का जो strategy है वो sum up करना पड़े हम्म। और मैं बोलूँगी आपको कोई तीन नॉन नेगोशिएबल मैं आपको वेज बताऊँ तो what would they be? कौन ऐसी तीन नॉन नेगोशिएबल चीजें होंगी जो आप जेई प्रिपरेशन में कोई भी एस्पिरेंट है बोलेंगे कि आप उन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? पहली चीज तो ये कहूंगा कि ये 2 साल की जर्नी होती है, या। 11th और 12th। सो आपको कंसिस्टेंसी जरूरी है। हम्म। मीन्स कई बार होगा कि आप 11th में बहुत अच्छे थे पढ़ने में, 12th में आके आपका डाउनफॉल हो गया, आप हाँ। उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए क्लास 12th में। कुछ बच्चे 11th में उतने अच्छे नहीं होते, 12th में आके कवर अप कर लेते हैं। ट्रू। तो वही है कि आपको पूरे 2 साल आपको कंसिस्टेंट रहना होता है। कई बार क्या होगा कि आप वो अप डाउन आते रहेंगे, कई बार आपको लगेगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, कई बार लगेगा कि मैं खराब जा रहा है, वो फेजेज आएंगे, बट उनसे ओवरकम करना है और कंटिन्यूअस रहना है। Got it. So बीच में it's गिव अप नहीं करना है इसमें। एंड so सेकेंड थिंग आई वुड से कि बहुत सारी रिसोर्सेज मत रखो। मीन्स बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि बहुत सारे उनके पास रेफरेंस बुक हो जाती हैं, हम्म। मतलब हर सब्जेक्ट पे 2-2 3-3 रेफरेंस बुक रखते हैं। और जो कि हमें भी पता है कि ज़्यादातर बच्चों के साथ यही होता है कि वो मॉड्यूल भी उनका कंप्लीट नहीं हो पाता, जो कोचिंग से मॉड्यूल प्रोवाइड करती हैं वही हम्म। कंप्लीट नहीं होता और उनके पास रेफरेंस बुक इतनी सारी होती हैं। सो वो चीज़ वर्क नहीं करती। आप पहले जो बुक आपके पास इमीडिएट है, लाइक पहले आप नोट्स जो भी क्लास में पढ़ाया गया वो पढ़ें, उसके बाद डीपीपी वगैरह यदि मिलती है तो उसको करें, उसके बाद मॉड्यूल्स। देन यदि आपको नीड फील होती है तो आप कोई एक रेफरेंस बुक लगा सकते हैं, उसके अलावा जरूरत नहीं पड़ती है। All right. So means this is the first step that you can say is that कि never give up and proper discipline होना चाहिए. Second we go for कि आपका जो भी मटेरियल है क्वालिटी मटेरियल हो ओवर क्वांटिटी एंड आप उसी हम्म। पे स्टिक रहें. Okay. And what's the हम्म। third is the last advice, non negotiable. And third one, if you are going to coachings and you feel teacher is good and you मतलब आप उनके साथ अच्छा वाइब करते हो, तो आप उनकी उनको बातों को ज़्यादा फॉलो करें। यूट्यूब हाँ. पे बहुत सारे आपको टीचर्स मिलते हैं, बहुत सारे नॉट आई वुड नॉट से टीचर्स, बहुत सारे मेरे एज के दीदी भैया लोग होते हैं जो रहते हैं, तो उनकी बातों को इतनी फॉलो ना Very, करें। वो रील्स में जो चीज़ें very आती हैं appropriate, very तो appropriate advice that I would like to say is that बहुत सारे दीदी भैया मिलते हैं and it is very true that we cannot blindly follow anyone in this thing.
आप उनकी जगह पे आपके जो टीचर्स हैं उनकी बात माने, आप वो ज्यादा बेटर हैं। वो जैसे मैं भी यदि कोई बात बताऊंगा तो मैं कितना जानता हूँ अपने बारे में, और जो दो चार मेरे फ्रेंड्स होंगे उनके बारे में मुझे आइडिया है। बट जो टीचर्स होते हैं आपके पास, उनके उनके पास एक्सपीरियंस होता है, इतने सारे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया होता है, तो उनकी बातों को ज्यादा वैल्यू करें, रील पे इतने ना जाएं तो बेटर रहता है। That's a very good advice. In fact, this is something that I'm also going to take into consideration. तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट द मॉक टेस्ट। कोई भी अपना हम्म। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सबसे, इनफैक्ट अभी तो हमारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं स्टूडेंट्स के, तो जनरल जो स्टूडेंट्स का रहता है कि भाई हमने तो अपना सिलेबस कर लिया है, अभी हमें और क्या करने की जरूरत है। एंड मुझे लगता हम्म। है कि मॉक टेस्ट हो, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो, उनको लेकर के जनरली हम्म। स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज यार मैंने तो अपने सिलेबस कर लिया और पता है आई एम जस्ट हाँ। डूइंग हम्म। प्रिटी वेल। सो हम्म। व्हाट वन ऑफ द मिस्टेक, लेट्स से दैट कि जो स्टूडेंट्स इवन मॉक टेस्ट दे रहे हैं बट फिर भी उनसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, क्या है तो? ये पीवाईक्यू को जहां तक लेके सवाल है, तो उसमें ये है कि जैसे ही चैप्टर खत्म हो उसके बाद करना चाहिए। बट बच्चे हाँ, एक गलती क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि वो जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस। उसके बाद वो पीवाईक्यू करना चालू करेंगे, जो कि नहीं होता है मोस्टली लोग। मैं खुद नहीं कर पाया था, मैं बाकी के बारे में क्या कहूँ। मुझे भी ऐसा लगता था कि एक ठीक बार है। सिलेबस कंप्लीट हो जाए, यदि मुझे अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सब्जेक्ट की, तब मैं हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा, जो हम्म। कि हो नहीं पाता। लास्ट में आपका इतना समय नहीं बचता, तो आप फिर स्किप करते हो क्वेश्चंस को। तो मैं ठीक। कहूंगा कि जैसे चैप्टर खत्म हो उसके बाद पीवाईक्यू करें। एंड सेकेंड थिंग अबाउट मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट तो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। बट सिर्फ मॉक टेस्ट देना सफिशिएंट नहीं होता। मॉक टेस्ट हम्म। देने के बाद आपके मार्क्स आते हैं, तो कई बार अच्छे आ गए तो खुश हो जाते हैं, खराब आए तो अपसेट हो जाते हैं। बट हम्म। उसके बाद भी एक चीज करनी होती है कि उन्हें देखना होता है कि भाई हमारे क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहे हैं। लाइक हम्म। यदि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो वो हम्म। किस टॉपिक का था, वो मैंने टॉपिक पढ़ा नहीं था, या हम्म। मैंने कोई सिली मिस्टेक कर दी, समथिंग हम्म। इस टाइप से। तो आपको एनालाइज करना होता है बैठ के। सिर्फ मार्क्स जान लेने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ मॉक टेस्ट देते रहोगे, उससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता नहीं है। ओके, दैट्स ग्रेट। इनफैक्ट मुझे अमित ये एडवाइस काफी अच्छी लगी, जो मैं डेफिनेटली हमारे बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो कोरा और बाकी हम प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं वो शेयर करूंगी, विच इज दैट कि मॉक टेस्ट आर और पीवाईक्यू आपके इमीडिएटली चैप्टर खत्म होने के बाद करने चाहिए, हम्म। विच इज वेरी ट्रू के वेट करते रहते हैं कि सिलेबस खत्म हो जाए, और हम्म। सिलेबस खत्म होता नहीं है तो मतलब हमारे पीवाईक्यू सॉल्व भी नहीं होते हैं। एक और चीज है हाँ। कि बच्चे को लगता है कि मुझे चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा तब हाँ, करूंगा। और एक और एग्जैक्टली। रियलिटी है कि आप एक चैप्टर पढ़ लो, आप एक महीने होंगे वो चैप्टर फिर से भूल जाओगे, तो फिर आप उसको हाँ। रिवाइज करोगे। इस लूप में हाँ, बच्चा फंस जाता है, उस चक्कर में कभी पीवाईक्यू कर ही नहीं पाता। ट्रू, गॉट योर पॉइंट। तो लाइक आपको क्या लगता है कि आपने भी प्रिपरेशन किया है, आपने बोला है कि आपने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, तो मैं टेक्निकली 3 साल तो लेके चली रही हम्म। हूँ, आपने 11th 12th स्टार्ट किया होगा, हाँ। उसके साथ एक अटेम्प्ट दिया हम्म। होगा। 3 साल में आपने एक जो हम्म। चीज सीखी कि कुछ चीज जिसमें आपने मिनिमम एफर्ट दिया हो बट आपको कंसिस्टेंसी के साथ दिया था, लेकिन आपको मैक्सिमम उसका रिजल्ट मिला हो विथ मिनिमम एफर्ट, वन हैबिट और वन लाइक इस चैप्टर और हैबिट, हैबिट अच्छा। हैबिट। अ, ऐसा कोई एक हैबिट तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक क्योंकि है। मैंने मेहनत तो हर चीज पे की थी। ऐसा कुछ याद नहीं है कि मिनिमम। मैं तो हर चीज पे बहुत मेहनत की थी। मैंने बताया ना कि मुझे लगता था कि हार्ड वर्क से सब कुछ हो जाएगा। हार्ड हाँ, वर्क वर्क करता है, बट सिर्फ हार्ड वर्क से चीजें नहीं होती, थोड़ा सा आपको स्मार्टली भी देखना होता है चीजों को। सिर्फ मैं हार्ड समझ वर्क रही हूँ। करने से चीजें नहीं होती। मैं समझ रही हूँ बात हम्म। की, जब आपके पास आपको पता है कि जितना टाइम बचा है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हम्म। इफेक्टिवली कितना आप यूज कर पाते हैं, चाहे आप जेई की प्रिपरेशन करें, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन करें, एवरीवेयर इट इज अबाउट, आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। रिसोर्सेज को लेकर के हम्म। कोई, मुझे लगता है, आप कंप्लेन कर ही नहीं सकता। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास यूट्यूब पे फ्री टीचर्स है, आप मे बी कोचिंग कर रहे होंगे, आपके पास मेंटर होंगे। हम्म। हम्म। तो इस और मैंने एक वीडियो देखा था, इनफैक्ट हमने एक ऊंचाई के अपने प्लेटफॉर्म पे पोस्ट भी किया था, विच इज दैट कि आज के टाइम पे कंसंट्रेट करना बड़ा आसान है अगर आपको अपने डिस्ट्रैक्शन पता हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा है हमारे पास। तो उस डिस्ट्रैक्शन में हम्म। से सिर्फ आपको कुछ टाइम में फोकस करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डिस्ट्रैक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, और जो थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर फोकस कर लेता है तो दैट विल बिकम इजी फॉर दैट।
So, okay, as you said that there's not one thing that you can advise on to this thing. अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। आप टीचर है और आप स्टूडेंट भी हैं, हम्म, ठीक है? टीचर और हम्म, स्टूडेंट का कॉम्बो मुझे लगता है कि काफी पावरफुल है, अगर वो दोनों साइड के पावर्स को समझ जाए। बिकॉज एज अ स्टूडेंट आपका होना चाहिए कि आपको जितना सीखने मिल रहा है, आप उतना सीखें। एंड हम्म, स्टूडेंट तो जनरली हम हमेशा रहते ही है, और हमें रहना ही चाहिए सीखने के लिए। एंड चूंकि आप ऊंचाई पे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं एज अ मेंटर, तो बहुत ज्यादा आपको हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती होगी कि अगर कोई बच्चा आपके पास आ रहा है, वो तो आप पे कंप्लीटली ट्रस्ट कर रहा है, एंड यू कैन नॉट मिस गाइड दैम। कई बार ऐसा भी होता हम्म, होगा कि मे बी you are not able to answer few of the things, but you need to हम्म। answer them, but you cannot misguide them. So as a mentor, what's the most common mistake you think आपने अभी तक जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, आप अपने स्टूडेंट वाला एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कि एज अ मेंटर और एज अ टीचर जो सबसे ज्यादा मिस्टेक स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं अपनी जेई की प्रिपरेशन में टाइम पे। अ, काफी बच्चों का ये सीन है कि वो टीचर्स बहुत चेंज करते हैं। लाइक हम्म। आपको पता है कि यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स हैं, तो एक टीचर समझ नहीं आया दूसरे के पास चले गए, फिर दूसरे समझ नहीं आया तीसरे के पास चले गए। उन्होंने हाँ। कोचिंग्स में बैचेस ले रखे हैं, ऑनलाइन कोचिंग जो हैं, तो उसमें भी आपको 1.0 2.0 3.0 मिलते हैं। तो आपको हम्म। 1.0 के एक टीचर समझ नहीं आया, आप 2.0 में शिफ्ट कर जाते हो, फिर 2.0 में समझ नहीं आया 3.0 में। उस ठीक चक्कर में है। क्या होता है कि आप एक चैप्टर को 3-4 बार पढ़ रहे होते हो, बट ओके। आपको आउटपुट कुछ खास नहीं मिल रहा होता है, तो आपका सिलेबस बहुत पीछे रह जाता है। तो हम्म। ज्यादातर बच्चे जो मुझे मिले हैं उनमें से अधिकतर लोग का बैकलॉग है। अब हम्म। बैकलॉग का रीजन एक तो ये है, और दूसरा है कि वो डिमोटिवेट हो गए किसी रीजन से, कि स्टार्टिंग में पढ़ना चालू किया, कुछ टेस्ट अच्छे नहीं गए, कुछ क्वेश्चन नहीं बने, तो डिमोटिवेट हो गया, उन्होंने पढ़ना बीच में कम कर दिया। कब कर दिया? तो ज्यादातर बच्चों का क्या सीन है कि बैकलॉग लास्ट में क्रिएट कर लेते हैं, फिर बाद में उनको काफी दिक्कत आती है। ट्रू। तो स्टिक टू वन मेंटर। पहले आपको ये देखने की ज्यादा जरूरत है कि हम्म। आपके साथ प्रॉब्लम है या टीचर के साथ प्रॉब्लम है। एंड वंस यू नहीं, फिगर आप इट आउट। एनालाइज कर लो, आप 3-4 टीचर को जज कर लो, आप एक बार कोई बात नहीं है, बट लेकिन जब फिर आप उसके बाद चूज आप कर स्टिक लो, कर जाओ कि मुझे। हाँ, हाँ, हाँ। जब आप चूज कर लो देन स्टिक टू दैट पर्सन। एंड क्योंकि फिर उससे हम्म, बहुत सारे आपके कंसिस्टेंसी, आपके माइंड के बहुत पर्सपेक्टिव एंड हम्म, ऑल में भी काफी फर्क पड़ता है। ठीक है। आई हैव अ क्वेश्चन दैट कि व्हाट चेंजेस फास्टर व्हेन, अगर मान लेते हैं कि एक बच्चा बैच में पढ़ रहा है एंड हमारे जो ऊंचाई प्लेटफॉर्म पे है दैट इज जनरली हम वन टू वन मेंटोरशिप करते हैं। सो हम्म। आपके अकॉर्डिंग क्या चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी स्टूडेंट के लिए जब वो किसी टीचर से गाइडेंस ले रहे हो? इज इट देयर मार्क्स, माइंडसेट और द कॉन्फिडेंस? क्या सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे? व्हाट? सबसे एक ये होता है कि बच्चा उस टीचर से या उस मेंटर से कितना कंफर्टेबल फील करता है। बहुत सारे ठीक बच्चे है। क्या होते हैं कि वो अपने दिल की बात बताना पसंद भी नहीं करते, उन्हें लगता है यार उतना कंफर्ट फील नहीं करते, तो वो हाँ। नहीं बताते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना, वो काफी कॉर्डियल होने चाहिए, इतना हम्म। ट्रस्ट होना चाहिए दोनों के बीच में कि वो अपनी बातें शेयर कर सके। कई बच्चे हम्म। शर्माते हैं अपने बताने में कि मेरे मार्क्स कम आए। जैसे एक बच्चा था, हम्म। तो मैंने उससे पूछा कि लास्ट मॉक टेस्ट में कितने आए थे, हम्म। तो बोलता है कि सर आप ये मत पूछो, जान दो, कम ही आए थे, क्या बताऊं। मतलब वो मार्क्स बताने में भी थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। फिर मैंने उसे थोड़ा सा कूल डाउन किया, फिर उसने बताया कि भैया इतने मार्क्स आए। तो वही है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों के बीच में एक रिलेशन जो है ना, काफी हेल्दी होना चाहिए, ताकि वो अपनी बातें शेयर कर सके, तभी आप उसको गाइड कर पाओगे। हम्म। आपकी बात से मुझे एक चीज समझ आई कि अगर बच्चा वन टू वन में कहीं ना कहीं हेजिटेट करता है, तो अगर कोई बच्चा 30-40 बच्चों की क्लास में बैठा हुआ, तो मुझे लगता है वो तो शेयर ही नहीं करेगा। बहुत हेजिटेट करते हैं, नहीं पूछते हैं बच्चे क्वेश्चन। एक बच्चा है अभी, हम्म। वो मुझसे बात कर रहा था, बोला कि भैया मैं क्लास में डाउट पूछता ही नहीं हूँ। मैंने कहा हाँ। क्यों? कि हम्म। एक बार कभी उसने डाउट पूछा होगा तो सर ने थोड़ा उसका मजाक बना दिया कि तुम्हें इतना सिंपल अच्छा। क्वेश्चन नहीं आता, तो हम्म। उसके बाद उसने क्वेश्चन ही पूछना बंद कर दिया, कभी नहीं हम्म। पूछता वो। तो ये ऐसी चीजें तो होती ही हैं। तो ओके। टीचर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी बच्चे को ऐसे मजाक ना उड़ाए। कुछ बच्चे दिल पे ले लेते बहुत हैं चीजों ज्यादा। को, फिर वो हाँ, बच्चे हेजिटेट सेंसिटिव करते हैं। होते हैं। जनरली मैंने भी देखा है कि अगर किसी बच्चे को सवाल पूछना हो, तो कोई भी हो, सबसे पहले तो उनको यही लगता है कि शायद आई एम डम, भाई इतना सिंपल क्वेश्चन हम्म। नहीं आ रहा। और जैसे जैसे अगर वो करेज करें वहां पे वो डीमोटिवेट हो जाए, तो वो काफी एक और ह्यूमिलेटिंग बात हो है कि जाता बच्चे है। को लगता है कि मैंने डाउट पूछा
तो बाकी लोग को बच्चे को लगेगा कि इससे नहीं आता, और वो थोड़ा सा अपना इंसल्ट फील करता है बच्चा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बच्चे को डाउट पूछना ही चाहिए। कोई इतना जज नहीं करता, थोड़ी देर के लिए होता होगा, बट इतना लॉन्ग टर्म में कोई इतना याद नहीं रखता कि किसने डाउट पूछा किसने नहीं। तो बच्चों को तो थोड़ा सा बेशर्म होना चाहिए इस मामले में, डाउट पूछने में। आई अग्री विथ योर पॉइंट। आप जितना ज्यादा बेशर्मी के साथ सवाल पूछेंगे और जितना ज्यादा हाँ। अपने सवाल को इम्पोर्टेंस देंगे, उतना ही आपको कहीं ना कहीं उस चीज के आंसर भी मिलेंगे। So I have हम्म, one very short and honest rapid fire thing that we can do into our session. So let's do one thing is that कि one book that you think that कि हर एक जेई स्टूडेंट को बाय करनी चाहिए, which book you will suggest? करनी ही चाहिए। करनी ही चाहिए। डिपेंड्स पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाइज ये तो मैटर No, करता है, the question बट the question can't be conflicting one. You have to just answer one. एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री, आई वुड से। तो वो तो होगी उनके पास। ठीक है, एनसीईआरटी ऐसे से। एंड वन बुक दैट यू थिंक दैट कि जो उनको बिल्कुल भी बाय नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी हैं। फिजिक्स में एक बुक होती है एरोडो, जो कि हम्म। बहुत सारे बच्चे खरीद लेते हैं, जबकि जेई के लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं वो। ओके। वो ओलंपियाड वगैरह में काम आती है, जेई मेंस और एडवांस में उसका कोई खास यूज नहीं होता, बट पता नहीं क्यों एक हाइप है और बच्चे उसको खरीद लेते हैं। ऑलराइट, सो यू आर अ कॉफी चाय पर्सन, व्हिच वन ऑफ द थिंग दैट यू प्रेफर टू हैव? अर्लियर आई वाज चाय पर्सन, नाउ आई हैव स्विच्ड टू कॉफी। Coffee. Okay, it's just like us that we prefer coffee in the morning and tea at evening. All right. So biggest time waster during preparation, overthinking or phone? ओवर थिंकिंग। Overthinking, right? फोन का डिस्ट्रैक्शन मुझे कभी इतना नहीं था। Hmm. ओवर थिंकिंग ही है जो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना, वो अभी भी मुश्किल है। काफी कोशिश करते हैं, बट ठीक है, we will talk about that one. One topic student panic about unnecessarily, जो आपको लगता है? वन पर्टिकुलर टॉपिक जी, क्या आप चाहे फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, कोई भी आप सब्जेक्ट पिक कर सकते हैं, उनमें से एक ऐसा टॉपिक जो डरते बहुत ज्यादा है, बट मे भी शायद हमें उतना डरने की जरूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई ऐसा चैप्टर तो है ही। हम्म। आई वुड से यदि मैथ की बात करूँ तो कोऑर्डिनेट है, जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान करती है आई गेस। हम्म। मतलब ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे कि पीएनसी भी है, बट पीएनसी क्या है, सच में हार्ड है। बट हम्म। कोऑर्डिनेट जो है वो थोड़ा सा परेशान करती है, थोड़ा अजीब लगता है बच्चे को, बट एक बार ठीक से पढ़ लेता है बच्चा तो वो काफी इजी टॉपिक है। ऑलराइट देन। तो आप जब अपनी प्रिपरेशन करते थे तब आप अर्ली पर्सन थे, अर्ली मॉर्निंग पर्सन थे, या फिर लेट नाइट ग्राइंड इज समथिंग दैट यू प्रेफर? Somewhat between the two. Like बिटवीन I द used टू। to wake up at 7 o'clock and sleep at 12 or 1 p.m. मुझे आप पहले 1 a.m. ऐसे पर्सन मिले हैं कि जिन्होंने एक बोला है कि मेरा हाँ पर्टिकुलर रूटीन था यूजुअली, क्योंकि या तो हम 5 बजे उठा करते थे और 4 बजे उठा करते थे, अदरवाइज लाइक हम सुबह 3-4 बजे सोते थे। ठीक है। I have a one last question to ask you, Amit, which is that if you could, personally mentor one struggling G or NEET aspirant, like आप जेई के Hmm. एस्पिरेंट को तो अभी लीड कर ही रहे हैं, और Hmm. जो अभी वीडियो देख रहे होंगे, जो जाना चाहते हैं कि भाई अगर अमित भैया पढ़ रहे हैं हमारे आईआईटी कानपुर में, तो मे बी हम भी किसी ना किसी आईआईटी में जा पाए, तो Hmm. क्या आप Hmm. उनको एक सजेशन देंगे कि अपनी प्रिपरेशन में उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज की नींव रखनी चाहिए, फाउंडेशन रखनी चाहिए? Hmm. मान लीजिए कि ऐसा कोई बच्चा है जिसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो हम्म। आई वुड से कि बैक टू बेसिक। यदि आपसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। आप अपने नोट्स को एक बार पलटिए, ठीक है। स्टार्टिंग से नोट्स को पढ़िए, तो उसके हाँ। बाद उसके क्वेश्चंस लगाइए। वो भी इजी से स्टार्ट कीजिए, इजी मीडियम देन हार्ड। कई बार हम्म। क्या होता है कि बच्चे नोट्स पढ़ते नहीं है, सीधे क्वेश्चन चले जाते हैं, और वो हम्म। चैप्टर भूल चुके होते हैं, उस चक्कर में उनसे क्वेश्चन नहीं बनते, फिर ट्रू। डिमोटिवेशन होता है और फिर वो पढ़ना ही बंद कर देते हैं। तो आई वुड से नोट्स को पलटिए। नोट्स मैं कह सकता हूँ कि वो खजाना है आपका। आप हम्म। अलग अलग भटकते हैं बच्चे, बट मैं कहूँगा जो भी नोट्स है उनके
नोट्स ही सब कुछ है, ज्यादा चीजें नोट्स से ही आती हैं, तो नोट्स अच्छे से पढ़ लें, फिर उसके इजी, मीडियम, देन हार्ड वाले क्वेश्चंस करें। Okay, thank you so much for all the valuable advice that you gave into our session. Definitely जो students देख रहे होंगे उनके लिए काफी helpful रहेगा. And अगर किसी student को कोई particular question लगता है कि they wanted to ask or something, we do have plenty of mentors. अमित हमारे साथ हैं और भी हमारे बाकी mentors हैं. आप हमसे comment section में सवाल पूछ सकते हैं. First of all, मेरा मानना ये है कि आपको यहाँ पे ज्यादा genuine advice मिलेगी, क्योंकि डायरेक्टली जो वो चीज फेस कर चुके हैं और वो मिस्टेक कर चुके हैं, देन डेफिनेटली यू गाइस डोंट नीड टू रिपीट दैट वन. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन.